یہ کیسا مجسمہ بنایا ہے؟ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے عالی جناب، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مجسمہ میرے بس میں نہیں۔ تم چاہتے ہو کہ اس مسخرے کو خداؤں کے مجسمے کے طور پر گھر لے جاؤں؟ عالی جناب، یہ مجسمہ جوپیٹر کا تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ سے انتقام لے یا کوئی نقصان پہنچائے؟ نہیں، تم یقین رکھو کہ یہ بدصورت مجسمہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن میں نے عبادت گاہوں کے خداؤں میں اس سے زیادہ بدصورت مجسمے دیکھے ہیں، یعنی وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی باتوں کا خیال رکھو کوزہ گر، یہ باتیں تمہارے نقصان میں۔ ہم ان مقدس مجسموں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، انہیں خدا مانتے ہیں، تو کیا ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے یہ کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مجسمہ کیوں ٹوٹ گیا اور اپنا دفاع بھی نہیں کیا، اور کیا انتقام لے گا یا نہیں؟ ظاہراً تم بہت بھولے نظر آتے ہو، یہ مجسمے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں۔ بس اس کا مطلب کوئی حقیقی خدا ہے کہ جس کی تصویر ہم ان بتوں کی شکل میں بناتے ہیں۔ علی جنابان، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ خدا آپ لوگوں سے انتقام لے گا؟ میں آپ حضرات سے معذرت چاہتے ہوئے ایک بات صادقانہ طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آزردہ خاطر نہ ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ عبادت کے لیے اس سے زیادہ توانا خدا کو انتخاب کرنا چاہیے، نہیں معلوم کس طرح کا خدا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ وہ خدا اتنا طاقتور اور قادر و توانا ہو کہ اپنا بھی دفاع کر سکے اور اپنے بندوں کا بھی۔ کیسا مجسمہ بنا دیا جو جوپیٹر کے علاوہ ہر شے سے مشابہت رکھتا ہے۔ نہایت گھٹیا اور بدصورت مجسمہ، مگر پر خیر و برکت، جو شرک سے ہماری نجات کا ضامن بن گئے۔ دنیا نے اپنی اس زیرکانہ حکمت عملی سے ہم کو ایک عظیم حقیقت کی طرف متوجہ کیا، اور وہ حقیقت ایک توانا خدا کو پانے کی تلاش تھی۔ اس واقعے کے بعد میں ہمیشہ دنیا کو دیکھتا ہوں اور متواتر خدائے یگانہ سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔ مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے، حتیٰ مشکوک لوگوں کو بھی گرفتار کر لو۔ میں چاہتا ہوں شہر میں ایک بھی عیسائی نہ رہے۔ جی عالی جناب۔ زیادہ تر شہر کی تیاریاں اور مرمت عیسائیوں کے ہاتھوں میں ہے، امید ہے کہ استقبال کی تقریب میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ شہنشاہ کی موجودگی میں نمائش اور بہادروں کی لڑائی بھی استقبال یا تقریب کا حصہ ہے، لہٰذا کچھ مسیحی بھی گرفتار ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، تمام ان لوگوں کو جو ادونیا سے رابطہ رکھتے ہیں گرفتار کر لو۔ ان کی گرفتاری سے بہت سے پہچانے جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میکسیملین اور ہیلن اپنے ہم مذہب لوگوں کی گرفتاری کے سلسلے میں لا تعلق نہیں رہیں گے۔ دیکھنا ہے وہ کہاں تک برداشت کرتے ہیں۔ بہت خوب، دیکھوں کیا کرتے ہو۔ چلو۔ جی علی جناب۔ وہ مسیحی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جوپیٹر کے سامنے نہیں جھکا، وہ مسیحی ہے۔ تو جھوٹ مت بول، یہاں سے نکل جا۔ کیوں لے جاتے ہو اسے؟ کیوں لے جاتے ہو اسے؟ چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو، چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو۔ پکڑ لو اسے، جانے مت دینا۔ کہاں بھاگ رہا ہے؟ یہ مسیحی ہے، ٹھہر جاؤ۔ کہاں جائے گا بھاگ کے؟ اسے جانے مت دینا، یہ مسیحی ہے۔ پکڑ لو اس کو، اسے جانے مت دینا۔ کہاں جائے گا بھاگ کر؟ یہ اسے گرفتار کر لو۔
मत मारो इसे। क्यों मारते हो मुझे? मत मारो। मत मारो मुझे, क्यों मारते हो मुझे? जिसको भी देखते हैं मसीही निकलता है। क्या पता बहन, शायद उनकी तादाद इनसे भी ज्यादा हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। इतने सारे गिरफ्तार हो रहे हैं, फिर भी लगता है कि ये फितना शहनशाह के आने तक खत्म न होगा। कितनी बेइज्जती है। तुम्हारे पास बस यही रंग है? चलो तेज तेज चलो, चलो जल्दी जल्दी। चला। ऐसा क्यों सोचते हो कि रूमी बुत परस्तों के खिलाफ फ़िलहाल कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? हम क्यों अपने हम मजहब लोगों की कत्ल व गारत गरी का तमाशा देखते रहें? रोमियो के खिलाफ कदम उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखो नतीजा क्या निकलता है। दकियानूस के महल में हमारी मौजूदगी हमारे लोगों के लिए मुफीद साबित हो सकती है। मौजूदा हालात में हम मुख्तलिफ तरीक़ों से मुवहिदों की मदद करते हुए उनके ख़िलाफ़ की जाने वाली बाज़ कार्रवाइयों को रोक सकते हैं। हमें हर वो इक़दाम से परहेज़ करना चाहिए जिससे मौजूदा हालत ख़तरे में पड़ जाए। हाँ, अगर कोई अहम नतीजा सामने आता है तो हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। बेहतर यह है कि हम में से हर एक शख्स अपने अपने काम की जिम्मेदारी ले ले। ठीक कह रहे हैं। जनाब तलमीक़ा का काम वाज़ेह है। वो दरबार के ख़ास तबीब होने की हैसियत से महल की निगरानी कर सकते हैं और वहाँ के अखबार हम तक पहुँचा सकते हैं। वो हवादिस और इक़दामात जो हमारे हम मजहब लोगों के ख़िलाफ़ होते हैं उसको रोकना मेरी ज़िम्मेदारी है, और ये भी कोशिश करूँगा कि मसीहियों की पोशीदा महाफिल में शिरकत करूँ। तमाम ईसाई मुबल्लिगीन और शहर के बहादुर जवानों से राबिता करना जनाब मैक्सिमिलियन की जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों सोचते हो कि फ़िलहाल रूमी बुत परस्तों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? हम क्यों अपने हम मजहब लोगों को इस कदर ईज़ाएं देने और हलाक करने का तमाशा देंगे? और चुप रहे। ये लो। चलो आगे बढ़ो। चलते क्यों नहीं? बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, जोर से चलो, जल्दी चलो। चलो चलते रहो, चलो जल्दी चलो। पकड़ लो इसे भी, ये देखो, नहीं इसे छोड़ दो, इधर ले लो, चलो इधर। जाने दो। हटो यहां से, रास्ता दो। ए देखो, ये कहां जा रहा है? यही है, ये मसीही है, ये मसीही है, मैं जानता हूँ। इसको पकड़ लो, इसको मत जाने दो, ये मसीही है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं मसीह नहीं हूँ। शिकायत करूंगा, मैं मसीह नहीं हूँ। ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ जाओ सीधे।
चढ़ो ऊपर। कुछ भी ए चलो हटो यहाँ से। इसे पकड़ो, ये मसीही है। 2 टके के जासूस, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। बता बता मैं कौन हूँ। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं जनाब डेक्यानूस के दामाद मैक्सिमिलियन का आदमी हूँ। मुझे क्यों पकड़ते हो? छोड़ दो मुझे। ये क्या हो रहा है यहाँ? आली जनाब, मैं मैक्सिमिलियन का आदमी हूँ। छोड़ दो मुझे। आली जनाब, ये मुझे पकड़ रहा है, छोड़ दो। ये मसीही है आली जनाब, मैंने इसको दुनिया के पास जाते देखा है। जी आली जनाब, जरखीन ने इसकी शनासाई की है। नहीं, मैं इसे जानता हूँ। ये मसीह नहीं है, जनाब मैक्सिमिलियन का नौकर है। आली जनाब, वो एक मसीही है, उसको अच्छी तरह जानता हूँ। वो दुनिया के घर आता जाता है। वो जनाब दकियानूस के दामाद मैक्सिमिलियन के घर का खादिम है और तुम उसको मसीही कहते हो? वो आज़ाद है। चलो, चलते क्यों नहीं? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चलो। परेशान ना हो, ये सब अदोनिया की वजह से है। जब तक उसे गिरफ्तार ना कर लें चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत जल्द यहाँ से चले जाओ। इताअत आली जनाब। अगर खरीदना नहीं है तो क्यों बार बार देख रहे हो इसे? रख दो इसे। ये सामने मकान किसका है? मैक्सिमिलियन का। गैलिस को तुम जानते हो? वहीं रहता है। लो, मिल गया।
सरकार जिसने दुनिया को भगाया था, मैंने पीछा करके उसको पहचान लिया। तुम्हें यकीन है? जी अली जनाब, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। उसका पीछा जारी रखो, जाओ। चालाक आदमी है। जूलियस को मालूम होना चाहिए कि उसकी गुस्ताखी का जवाब मिलेगा। माँ, आप कहाँ जा रहे हैं? परेशान क्यों होते हो मेरे बेटे? मैं जल्द लौट आऊंगी। माँ, जल्दी आ जाना। हद से आगे बढ़ गया है, उसे मजा चखाऊंगी। चलो गैलिस। मालकन, क्या बेहतर नहीं है कि जनाब मैक्सिमिलियन का इंतजार कर लिया जाए? नहीं, इस मसले को मुझे खुद अपने बाप के साथ हल करना है। जूलियस की ये हिम्मत कि मेरे लिए जासूस लगाए। अच्छा, जल्दी करो गैलिस। हाँ। ये गैलिस है। ये तांगा जाना पहचाना लगता है। अच्छा, तो ये दुनिया को इसी तांगे से भगाया है। कहीं बानो हिलन का गुस्सा दकियानूस के सामने मुश्किल का सबब न बन जाए। इबादतगाह के तमाम पुजारी एक लिबास में बड़े माबद के सामने अजीम शान शहंशाह का इस्तकबाल करेंगे और उनके कदमों पर फूल बरसाएंगे। माबद के सामने जैनस के मुजस्समे को नया बनाना। बानो हिलन। बाबा। क्या बात है? तुम्हें मुझसे काम है? मुझे आपसे तन्हाई में बात करनी है। तुम अपने बाप को भी देखना नहीं चाहती? हेलन, आपके ख्याल में मैं अपनी माँ का हादसा भूल जाऊं? तुम्हारी माँ ने हमारे रूमी खुदाओं से गद्दारी की है। मैं उसकी गद्दारी को कैसे फरामोश करता? मेरा आपसे झगड़ने का इरादा नहीं, सिर्फ चाहती हूँ कि आप बाखबर रहें कि जूलियस ने हम पर जासूस लगाए हैं। अगर आप ना रोकें तो हम खुद कुछ करेंगे। गोया बानो हिलन गुस्से में थी। किसी ने उनके दरवाजे पर कुत्ता बांध दिया है जो उन्हें तकलीफ पहुंचाता है।
मेरा इरादा सताने का नहीं, शहंशाह की आमद नज़दीक है। मुझे हर जगह और हर शख्स पर नज़र रखनी है अली जनाब, लिहाजा मजबूर हूँ अपना फ़र्ज अदा करूँ। मैं यकीन कर लूं, तुम सोचते हो कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी लालची निगाहें हेलन पर लगी रही है, या नहीं जानता कि उसके शौहर से तुम्हें बुग़्ज़ है। मेरे पास ऐसी बातें हैं कि अगर जनाब तकियानूस सुनेंगे तो उनकी तस्दीक करेंगे। हाँ, मैं तस्दीक करूंगा कि जनाब जूलियस मेरे मुशीर जब से सिपह सालार बनकर फिलाडेल्फिया आए हैं, उस वक्त से वो मेरे और मेरी हुकूमत के खिलाफ फितना और साजिशों में मसरूफ हैं, और उन्हें ये भी पसंद है कि वो मेरे तख्त पर बैठें और मेरे महल में हुकूमत करें। और किस चीज की तस्दीक करूं जनाब जूलियस? आप गलत सोच रहे हैं अली जनाब। मैंने गलतियां बहुत की हैं जनाब जूलियस, मेरी पूरी जिंदगी गलतियों से भरी है, और ये भी देखोगे कि गलती ही से तुम पर भी कोई बला नाजिल कर दूंगा। बेहतर है कि तुम होशियार हो जाओ। लेकिन मैं आपके लिए साबित कर दूंगा। क्या? आपकी और शहंशाह की खिदमत के अलावा मेरा कोई इरादा नहीं। कोशिश कर लो, लेकिन याद रखना, अगर तुम अपनी शरारत से बाज ना आओगे तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुम मुझसे खूब वाकिफ हो जूलियस कि मैं ट्राजन और एड्रीन से कितना करीब हूं। अगर साबित कर दूं तो? अगर अपनी बात को साबित कर दो तो मैं खुद अपने इन्हीं हाथों से हेलन और मैक्सिमिलियन की गर्दन उड़ा दूंगा।